Good morning class. We are going to start a new chapter, lesson number 4, our Earth. इस लेसन में हम हमारे planet Earth के बारे में we are going to see few new things. Okay. So it is there in your textbook, page number 243. So let's begin. So our Earth is a unique planet. हमारा जो planet Earth है वो एक unique planet है. Why it is so? Because ये एक ऐसा planet है solar system का जिसमें human beings, living organisms can survive. कोई भी और ऐसा planet नहीं है जो हमारे Earth की तरह living beings को survive करने की opportunity देता है. And why it is so that Earth helps any living beings to survive on it? It is due to the presence of water, air and temperature which is neither too hot or cold. मतलब जो water का presence है, oxygen का presence है, जो temperature है अर्थ का वो ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं, moderate temperature है जिसकी वजह से human beings या कोई भी living beings can survive on planet Earth. So Earth is a unique planet. How did the Earth begin? कैसे Earth का जो beginning है कैसे start हुआ? So in the beginning, Earth was just a huge ball of hot gases and dust. तो शुरुआत में Earth एक huge ball मतलब एक बड़ा सा ball जैसा imagine कर सकते हो जिसके अंदर आप सिर्फ hot gases गर्म gases हैं, dust है, कोई भी ऐसी चीज factors नहीं थी जिसमें you can survive. So it was just a ball which has many hot gases and dust. It was a spinning very fast. वो बहुत स्पीड में spin कर रहा था. Spin करना मतलब इससे घूम रहा था. As it kept spinning, the gases slowly cooled down and the surface of Earth became cold, hard and solid. So जो spinning थी, very fast spinning, मतलब एक ball को imagine करो that खुद ही घूम रहा है. तो घूमते घूमते उसके जो अंदर की gases थी, hot gases थी, वो ठंडी होने लगी, cool down. And then this जो surface थी Earth की वो ठंडी हुई, hard बनी और वो solid surface में बदल गया. So that's how Earth began. Okay. So internal structure of Earth. तो Earth एक ball जैसा shape में हमने देखा है. Now we are going to see what is there within the surface of Earth. तो Earth एक spherical ball की तरह लगता है. Spherical ball मतलब वो completely round नहीं है. उसके जो ये टॉप और बॉटम है वहाँ से वो थोड़ा सा प्रेस है, तब आपको यहाँ से थोड़ा सा एक फ्लैटनेस उसमें आ जाती है. यू कैन से दैट अर्थ इज कंप्लीटली राउंड लाइक अ बॉल बट इट इज स्फेरिकल इन शेप. यहाँ से और यहाँ से इट इज थोड़ा सा प्रेस्ड. सो देयर इज थ्री इंपॉर्टेंट लेयर्स. अर्थ के थ्री इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं क्रस्ट, मेटल एंड कोर. सो क्रस्ट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. सबसे आउटरमोस्ट जो लेयर है अर्थ का दैट इज कॉल्ड क्रस्ट और उस क्रस्ट में भी ह्यूमन बींग्स और लिविंग बींग्स सर्वाइव. मेटल जस्ट द एरिया बिलो द क्रस्ट. क्रस्ट के अंदर जो बिलो द क्रस्ट जो एरिया है दैट इज मेटल एंड उसमें माग्मा जो मेल्टेड रॉक्स हैं, जो रॉक्स जो मेल्ट हुए हैं वो जो जहाँ है वो है माग्मा एंड दैट एरिया इज कॉल्ड मेटल. कोर तो पहले क्रस्ट के बाद वी हैव मेटल एंड देन वी हैव कोर. द कोर इज एन एरिया जस्ट बिलो द मेटल एंड इट इज द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ का इनरमोस्ट पार्ट इज कॉल्ड कोर और वो बहुत हॉट है. इट इज एक्सट्रीमली हॉट एंड इट कंटेन्स व्हाट हॉट गैसेस एंड दिस मोल्टेड रॉक्स जो माग्मा है दैट इज कंटेन्ड इन this core. And here the temperature and the pressure both are very high because it contains hot gases present in core. So three important layers of Earth's surface is crust, metal and core. So now on our planet Earth there are certain imaginary lines. और वो कौन से क्या importance है उनकी that we are going to see. So the imaginary line runs to the center of the Earth from the North Pole to the South Pole. This line is called axis and the Earth is still on its axis. So imagine this is not a perfect shape of Earth but yeah
इमेजिनरी लाइन अर्थ पे से पास हो रही है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही है, उस लाइन को हम बोलेंगे एक्सिस। और इस एक्सिस पे अर्थ थोड़ा टिल्टेड है, टिल्ट होना मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है। ओके, सो अर्थ इज टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस, और एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट passes from the center of the earth from north pole to the south pole. Now turn your page. Another imaginary line divides the earth into two equal halves is called equator. So we have our planet earth. There is an imaginary line. जो imaginary line का मतलब होता है कि वो actual में वहाँ नहीं है, but it is an imaginary line कि हाँ एक line ऐसा हम imagine कर रहे हैं. So there is an imaginary line called equator. Equator करके एक imaginary line है जो अर्थ के सेंटर से पास होती है, और जब ये लाइन सेंटर से पास होगी तो अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करते हैं, टू इक्वल पार्ट्स। जो नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक का पार्ट है, नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक का जो पार्ट है दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड द अनदर पार्ट हमने बोला अर्थ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो इक्वेटर से लेके साउथ पोल तक का जो पार्ट है दैट इज साउदर्न हेमिस्फीयर। So I repeat, there is an imaginary line that passes from the north pole to the south pole. That imaginary line is called axis, and that axis, on the axis our earth is little bit tilted. There is another imaginary line called equator that passes from the center of the earth and divides our planet earth into two equal parts. The path from the north pole to the equator is called northern hemisphere, and the path from the equator to the north pole is called southern hemisphere. That's it. I hope you are clear. Okay, now movements of the earth. Here we have seen about the imaginary lines. Now हम देखेंगे अर्थ क्या movements करता है. So there are two types of movements. So rotation and revolution. First one, rotation. आपने देखा होगा टॉप, जैसे हमरा जो बोलते हैं ये ऐसा कुछ देखा होगा आपने खेलते रहे, वो जब रोटेट करता है तो वो एक ही पॉइंट पर सेंटर को इमेजिन करके वो रोटेट होता रहता है। इन द सेम वे हमारा अर्थ भी ऐसे ही स्पिन हो रहा है। सो इट स्पिन्स अराउंड द लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो अर्थ के सेंटर से जो लाइन है उसकी रेडियस में इट केप्स ऑन स्पिनिंग, मतलब केप्स ऑन रोटेटिंग। सो द स्पिनिंग ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो जो अर्थ का एक्सिस है उसके अराउंड ही जब अर्थ स्पिन करता है दैट इज कॉल्ड रोटेशन। सो आवर प्लैनेट अर्थ स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। सो एक रोटेशन, एक ऐसा रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ टेक्स 24 आवर्स। वो 24 आवर्स का जो ड्यूरेशन है जिसमें अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करता है, at that time our day and night changes. So the time period is called as solar day, और जो rotation of earth हो रहा है that is because of that day and night change। जो हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है उसको हम बोलते हैं 24 आवर्स कंप्लीट होते पर अर्थ का ये रोटेशन कंप्लीट होता है, और उस रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट occurs. So the next movement of earth is revolution. Revolution मतलब जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ऐसे ही अपना अर्थ सन के अराउंड भी रिवॉल्व करता है। That movement of earth around the sun is called revolution. It takes 365 days and 6 hours for the earth to complete one revolution. एक revolution को complete करने के लिए अर्थ को 365 डेज और 6 आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उसे हम बोलते हैं सोलर ईयर। वहाँ पे रोटेशन में सोलर डे था 24 आवर्स का, उसकी वजह से डे एंड नाइट चेंज हो रहे थे। वो कैसे चेंज होगा दैट वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट। बट रेवोल्यूशन के लिए इट टेक्स 365 days and 6 hours, and that is called solar year. And the revolution of the earth causes
season. जो season change आता है that is because of this revolution of earth. और जो day and night change होता है that is because of the rotation of the earth. तो अब देखेंगे हम day and night कैसे change होता है. So the rotation of the earth causes day and night. तो जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा उसकी वजह से डे एंड नाइट चेंज होगा. एट अ टाइम ओनली हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन. ये क्यों होगा? इमेजिन हमने बोला ये है हमारा प्लैनेट अर्थ. तो प्लैनेट अर्थ के पास में इफ वी हैव द सन हियर, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे है सन. ओके, सो हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस विल ओनली फेस द सन. सन से जो डायरेक्ट रेज आएंगी वो इस पार्ट पर फॉल करेंगी, राइट. तो इस पार्ट पर जब फॉल करेंगी तो यहाँ पे होगा डे. ओके, व्हेन द डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन falls on the part of the earth, that at that hemisphere we have day. तो ये सन रेज जब ट्रैवल करके इस हेमिस्फीयर पे पहुंचेंगे, राइट. सो इन दिस पार्ट विल हैव व्हाट? नाइट. ओके, पर ये तो रोटेट कर रहा है, स्पिन हो रहा है, राइट. जब ये स्पिन हो रहा है तो ये पार्ट पीछे आ जाएगा और ये पार्ट इधर आ जाएगा. तो सन से फिर ये वाले पार्ट पे डायरेक्ट रेज फॉल करेंगी, राइट. तो जब इस पार्ट पे डायरेक्ट रेज फॉल करेंगी तो ये हेमिस्फीयर विल हैव डे एंड दिस विल हैव नाइट. So that way the day and night change. Okay, so 24 hours में हमारा एक दिन भी कंप्लीट होता है. उसी 24 hours में क्या होता है? अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करेगा. Okay, so that's how day and night change. Now we have season. How season changes. So earth अपने एक्सिस पर थोड़ा टिल है, मतलब थोड़ा टिला, that we have already seen. And this revolution, when earth revolve around the sun, we say that the season changes. So the axis always points towards the north pole. तो जो एक्सिस है वो हमेशा पॉइंट करेगा नॉर्थ पोल पर. When the earth revolves around the sun, तो certain time of the year, northern hemisphere and southern hemisphere is bent towards the sun. तो जैसे ही रोटेशन होगा तो उस टाइम पे सन की तरफ कभी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होगा तो कभी साउदर्न हेमिस्फीयर होगा, बिकॉज इट इज कीपिंग रिवॉल्विंग अराउंड द सन. जो रिवॉल्यूशन है उसकी वजह से कभी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर तो कभी साउदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ बेंड होगा. So what happens that the direct rays from the sun, when it falls on the northern hemisphere, the northern hemisphere will have summer, and the other hand southern hemisphere में that time will have winter season. पर ये जब घूमकर southern hemisphere bend होगा sun की तरफ, at that time there we will have summer in southern hemisphere and winter in northern hemisphere. Okay, so in this figure it has been shown you clearly how the season changes. So I will show you in the textbook. Okay, so look here, we have, this is the first figure A. तो यहाँ पर एक हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो इस तरफ है और साउदर्न हेमिस्फीयर इज this side. So when the sun rays comes directly towards the northern hemisphere, तो northern hemisphere में होगा कौन सा weather? Summer. Okay, और southern hemisphere में direct sun rays नहीं fall कर रही, तो there we will have winter. Okay, in the figure B यहाँ देखो, that I will explain you next. C पे आ जाते हैं हम डायरेक्ट. तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रोटेट होकर इस तरफ आ गया और यहाँ पर कौन सा है? साउदर्न हेमिस्फीयर, जस्ट ऑपोजिट टू दिस वन. तो साउदर्न हेमिस्फीयर जब सन की तरफ बेंड होगा तो देयर वी विल हैव समर सीजन एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टुवर्ड्स द बैकर साइड, सो देयर विल बी विंटर. ओके, look at this figure. In B and D we have two new
मीन्स न्यू नहीं बोल सकते, 2 डिफरेंट सीजन्स आर गिवन लाइक स्प्रिंग एंड ऑटम। सो ये स्प्रिंग और ऑटम जो है, जब सन से ये हमारा अर्थ इक्वल डिस्टेंस से होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है, एट दैट टाइम वी हैव एक्सपीरियंस स्प्रिंग और ऑटम। ओके, सो जो हेमिस्फीयर सन की तरफ है दैट विल एक्सपीरियंस व्हाट, ऑटम। ओके, एंड द अदर वन विल हैव स्प्रिंग। सो यहाँ फिगर बी में अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सा पास में, साउदर्न, तो स्प्रिंग, और यहाँ पे ऑटम। ओके, अंडरस्टूड दिस फिगर? इट इज अपॉन हाउ द रेज ऑफ सन फॉल्स। अगर डायरेक्ट रेज फॉल होंगी तो वी विल हैव समर, एंड इफ डायरेक्ट रेज आर नॉट कमिंग फ्रॉम द सन देन वी विल हैव विंटर सीजन। ओके, so इतना समझ में आया? होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। सो नाउ ओके, जो हेमिस्फीयर सन की तरफ बेंड होगा, इन दैट हेमिस्फीयर टेम्परेचर वुड बी सीजन विल बी समर। जो भी हेमिस्फीयर सन की तरफ होगा उसमें वी विल हैव समर, एंड द अदर हेमिस्फीयर व्हिच इज नॉट बेंड टुवर्ड्स द सन देयर वी विल हैव विंटर। इतना यू शुड हैव अंडरस्टैंड दिस। सो जो दोनों हेमिस्फीयर है वो सन से जब इक्वल डिस्टेंस पे आएंगे तो हमारे पास एक ऑटम होगा और एक होगा स्प्रिंग। ओके, सो दैट्स इट। नाउ एट द पोल्स, सो व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ट टुवर्ड्स द सन, द नॉर्थ पोल हैज सनशाइन ऑल द टाइम एंड द साउथ पोल हैज नाइट ऑल द टाइम। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ बेंड होगा तो सनशाइन फुल टाइम नॉर्थ पोल पर होगा, और जो साउथ पोल है उसमें नाइट होगा। ओके, सो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ बेंड है तो नॉर्थ पोल में डे होगा, साउथ पोल में नाइट होगा। ओके, इन द सेम मैनर इफ द साउदर्न हेमिस्फीयर इज बेंड टुवर्ड्स द towards the sun, then day will be in south pole and night in the north pole। मतलब जब साउदर्न हेमिस्फीयर है वो यहाँ रोटेट होकर ऊपर जब आ जाएगा, और यहाँ पे समझो साउदर्न हेमिस्फीयर है सन की तरफ बेंड, उस टाइम पे साउथ पोल पर क्या होगा, डे, और जो नॉर्थ पोल है उसमें हो जाएगा नाइट। ओके, तो जो हेमिस्फीयर सन की तरफ बेंड है उस पोल पर डे होगा, यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर अगर बेंड है तो नॉर्थ पोल पे डे, साउथ पोल पे नाइट। साउदर्न हेमिस्फीयर जब सन की तरफ बेंड होगा तो साउथ पोल पे डे और नॉर्थ पोल पर नाइट। ये कैसे होगा, जब रोटेशन होगा, सन जब अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा, ओके, एट दैट टाइम this happens, day and night happens। और अर्थ जो है जो रोटेट करेगा अपने एक्सिस पर, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो दैट्स व्हाई सन राइजेस इन द ईस्ट। हम बोलते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। तो जो रोटेशन हो रहा है वो वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है, एंड that is why sun appears to rise in the east and sun sets in the west direction। तो अगर कोई पूछे कि सन किस डायरेक्शन में रोटेट करता है तो इट इज वेस्ट टू ईस्ट, और उस वजह से सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, the south pole has sunshine all the time and the north pole has night all the time। मैंने आपको समझा दिया, हेमिस्फीयर जो सन की तरफ बेंड होगा उस हिसाब से डे एंड नाइट होगा। और नॉर्थ इन नॉर्वे इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो जो नॉर्वे में प्लेस है उसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे सन कभी सेट होता है जब समर सीजन होता है, मई 14 से लेकर जुलाई 30 का जो टाइम है वहाँ पे सन कभी ढलता ही नहीं है उस नॉर्वे में, उस प्लेस पे, इसलिए उसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोला जाता है, क्योंकि पूरे उस पीरियड के लिए
सन रेज हमेशा होगी, मतलब पूरा टाइम उस डे में दिन ही होता है वहाँ पे, कभी सन डूबता नहीं है। At the equator, the sun rays falls directly on the equator throughout the year. That is why places near the equator are always hot. There are no season in these places. तो जो इक्वेटर की हमने बात की थी, एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के सेंटर से पास हो रही है और अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, वो इक्वेटर हमेशा सन में से डायरेक्ट रेज फॉल करेगी। सन की डायरेक्ट रेज अगर कहीं फॉल करे तो दैट इज ऑन द इक्वेटर, जिसकी वजह से इक्वेटर के पास की जो एरिया प्लेसेस हैं वो हमेशा हॉट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं और उधर एक पर्टिकुलर सीजन या क्लाइमेट चेंज हम एक्सपीरियंस करते ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर। So the places near the equator always experience hot climate or sunny climate. So that's it about the lesson. If there is any words that is not clear to you, you can send doubts to me. It's okay. And make sure that you read the lesson correctly. Then only you will understand कि क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया. So make sure that you read